नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed सेक्शन, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. Students, today we will discuss on topic session evaluation in civics teaching, fifth part, types of evaluation. We will discuss first in English, then after in Hindi. Let's start. There are mainly two types of evaluation. First is formative evaluation and second is summative evaluation. First, formative evaluation, structural design, refers to the evaluation of any educational program, planning process or material, etc., in which it is possible to facilitate on the basis of evaluation. In other words, structural evaluation can be used to make the effective quality of the content of any educational program, planning process desirable and useful. Hence, it is clear that in a structural evaluation, before the finalization of any construction program, planning process or material, its initial format is evaluated to that its structural deficiencies can be removed. Hence, it is clear that the main objective of structural evaluation is to point out the shortcoming in the educational program and material and suggest measures to overcome them. Hence, the functions of structural assessors can be divided into three parts. First, to collect clear evidence in related to the qualities or doubts of different parts of an educational program or material. Second, based on these evidences, the shortcoming of the program or material are to be kept in front. Third, suggestions are made to make the program or material more effective by removing these deficiencies. Second type, summative evaluation. Summative assessment or evaluation means the process of finding out the overall desirable of a pre-made educational plan or material. In other words, the yoga evaluator collects information about the merits and demographics of an educational program, plan or material so that a decision can be made to accept or continue in the future. Kids appropriate standard tools or methods such as interview plan, questionnaire or category scale, etc. To know the usefulness of evaluation method, it then collects the consent of experts. It then examines its usefulness by calculating related standards and evidence.
In the end, it decides whether to continue the education policy. Plan or program contain teaching method, teaching instrument or assessment method further, and if so, in what form. It is clear that the purpose of yogic evaluation is to examine the usefulness of any predetermined and applicable education policy, plan or program, course, teaching method, teaching instrument or assessment method, and decide to keep it running or not to continue. This session prepared by 2.0 digital version ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो सेशन है, टॉपिक है, उसका नाम नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन पार्ट 5 या 5वां. मूल्यांकन के प्रकार. मूल्यांकन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है. पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन. दोनों को विस्तार से हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. संरचना से तात्पर्य किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुविधा करना संभव हो. दूसरे शब्दों में संरचनात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशाली, गुणवत्तापूर्ण, वांछनीय तथा उपयोगी बनाया जा सके. तो स्पष्ट है कि संरचनात्मक मूल्यांकन में किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसकी संरचनागत कमियों को दूर किया जा सके. मतलब जो कमियां हैं उसमें दूर करने में मदद मिले. इसलिए स्पष्ट है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम और सामग्री की कमियों को इंगित करना तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताना है. अतः संरचनात्मक मूल्यांकनकर्ता के कार्यों को 3 भागों में विभाजित या बांटा जा सकता है. पहला, शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री के विभिन्न अंगों के गुण या दोषों के संबंध में स्पष्ट प्रमाण एकत्रित करना. दूसरा, इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को सामने रखना. तीसरा, इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुझाव देना. अब हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे, वो है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन. योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक योजना या सामग्री की समग्र वांछनीय को ज्ञात करने की प्रक्रिया. दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री के गुण व दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे उस कार्यक्रम को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय ले सके. मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी करने के लिए साक्षात्कार योजना, प्रश्नावली अथवा श्रेणी मापनी आदि उपयुक्त मानक उपकरण या विधि का निर्माण करता है. इसके बाद विशेषज्ञों की सहमति एकत्रित की जाती है. उसके बाद संबंधी मानकों व साक्ष्यों की गणना द्वारा इसकी उपयोगिता को जांचा जाता है. अंत में ये निर्णय किया जाता है कि यथा शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन या मूल्यांकन विधि को आगे चालू रखा जाए या नहीं. यदि चालू रखा जाए तो किस रूप में. साफ जाहिर है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित और लागू शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम,
पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन या मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की परख करना होता है और उसके आगे चालू रखने या चालू न रखने का निर्णय लेना होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो उपयोगी है कि नहीं, ठीक है। अगर उपयोगी है तो उसको कंटिन्यू रखा जाए, चालू रखा जाए, और नहीं है तो उस पर विचार किया जाए। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो दो प्रमुख भागों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। तो पहला संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, आज के लिए हमने मालूम किया जो मूल्यांकन है उसके बारे में कि कितने प्रकार का है। आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए जिससे आप आगे के सेशंस को क्लियर कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।